Hello students, welcome back to your online class. Today we will start new chapter, unit number 11, some P block elements. Your P block contains group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18. There are 6 groups in P block, which is boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, halogens and noble gases. In the present class you only have group number 13 and group number 14 in your syllabus. So firstly, let's discuss some general characteristics of P block elements. P block elements की general electronic configuration can be given as ns2 np1 to 6. This is 1 to 6 because अगर आपके पास group number 13 है तो this configuration will be np1. In case it is group number 14, it is ns2 np2, and accordingly this configuration is given as per the group number. Next is your oxidation state. In general, oxidation state is closely related to the number of electrons present in the valence shell of the atom, and in this case we can also say that oxidation state can be calculated by subtracting the group number from -10. मीन्स अगर आपके पास ग्रुप नंबर 13 है -10 you get 3. 3 is the oxidation number, common oxidation number or oxidation state. Plus 3 is the oxidation state of group number 13. Similarly, if you have group 14 -10, you get +4. For group number 14, +4 oxidation state is common for all the elements. Oxidation state में एक चीज़ और आती है, inert pair effect. As we go down the group, suppose you have group 13, which is boron, aluminium, gallium and indium and thallium. And here you can see that on going down the group, +3 oxidation state becomes less stable, and for this thallium, +1 oxidation state is more stable. This is because of inert pair effect. I will explain this inert pair effect later on. Next you have metallic and non-metallic characters. P block is the only block in the entire periodic table which contains both metals as well as non-metals. As you move along the period, metallic character decreases. बोरॉन से अगर आप नियॉन तक जाएं, you will find that मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, लेकिन डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. तो जो आपके पास ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक में जो एलिमेंट स्टार्टिंग में आते हैं इन जनरल वो मेटालिक होते हैं, धीरे धीरे मेटालॉइड्स होते हैं, एंड देन फाइनली लास्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं. ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के. नाउ वी विल स्टडी group number 13 elements separately. Group number 13 is boron family. The elements are boron, aluminium, gallium, indium and thallium, and these are their corresponding electronic configuration. In general, we can say that they have general electronic configuration as ns2 np1, where n varies from 2 to 5 in the case of s, and 3 to 6 in case of p orbital. Here we will study about general properties of these elements. Firstly, we have atomic number and atomic and ionic radius. Atomic radius of these elements are given as this. These are in picometers. As you can see that aluminium has greater atomic radius as compared to boron, but then this atomic radius
डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। ऐसा होने का रीज़न इन जनरल डाउन द ग्रुप, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं सेम ग्रुप में, तो नया शेल इंट्रोड्यूस होता है और उस वजह से एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए। एस ब्लॉक में भी हमने यही पढ़ा था, डाउन द ग्रुप नया शेल इंट्रोड्यूस होता है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। पर यहाँ पर ये जो एक एल्यूमिनियम से गैलियम तक आने पर जो ये डिक्रीज हुआ है एटॉमिक रेडियस का, ये क्यों हुआ है? ये एक एक्सेप्शनल केस है इस ग्रुप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या होता है कि गैलियम में 3d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। एल्यूमिनियम के केस में कोई भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। d ऑर्बिटल के पास पुअर, इसकी शेप की वजह से, d ऑर्बिटल की शेप की वजह से पुअर पेनिट्रेशन पावर होती है इसकी, ये स्क्रीनिंग नहीं कर पाता। तो इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है, सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, यहाँ पर आपके जो ये ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल का पुअर पेनिट्रेशन या फिर पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में है, यानी कि ये वाला p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को प्रिवेंट नहीं कर पाता है। d ब्लॉक के, ये दिस इज योर, सॉरी d ब्लॉक नहीं, d ऑर्बिटल प्रिवेंट नहीं कर पाता है न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर। तो ये अगर उसको पेनिट्रेट या स्क्रीन नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन वो नहीं स्क्रीन हो पाता। इस वजह से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से इसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ऐसा एल्यूमिनियम या बेरियम के केस, बोरॉन के केस में नहीं होता, क्योंकि उसके केस में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है ही, d ऑर्बिटल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे होंगे? अगर d ऑर्बिटल नहीं है तो उसके केस में ऐसे कोई स्क्रीनिंग या पेनिट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है और वो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। आफ्टर दिस द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ग्रेजुअली। The exception case lies only with aluminium and gallium. Again I will explain, it is because of the poor penetration of d orbital. Suppose this is your d orbital, ये d orbital लास्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से पेनेट्रेट या स्क्रीन या प्रिवेंट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये न्यूक्लियस का जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से जो रेडियस है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। Next is your ionization enthalpy. As if we compare ionization enthalpy of group number 2, which is in S block, group number 2 के comparison में group number 13 का ionization enthalpy काफ़ी कम होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि last electron p orbital में है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। It is very easy to remove this electron, but as compared to group number 2 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 थी, अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल था, क्योंकि ये एस ब्लॉक की एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, ये फुली फिल्ड है, यहाँ से रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 की एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 इज लेस। देन यू हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेनली डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस में अगर एक्सेप्शनल थोड़ा सा केस आया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आएगा। इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। बट इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जाते हुए इनिशियली डिक्रीज करती है, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। ये इसका एक्सेप्शनल केस इसीलिए है क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है हमारा वो उसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेप्शंस हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी है। देन यू हैव मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी कहा जा सकता है। अगर हम ग्रुप 2 के साथ कंपेयर करें ग्रुप 13 को, तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब कि इनका मेटालिक कैरेक्टर भी थोड़ा कम होगा उनके कंपैरिजन में। और मेटालिक कैरेक्टर एज वी मूव
डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. Oxidation state. Now comes the important topic, that is oxidation state. Oxidation state, as I have already explained, it can be calculated by group number 13 minus 10, which is equals to plus 3. Plus 3 oxidation state is common for all the elements of group 13. But as we move down the group, बोरॉन से थेलियम तक जब हम जाते हैं तो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल हो जाती है, और थेलियम के केस में, दिस इज द केस फॉर थेलियम, प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाएगी. दिस इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें NS2Np1, अब इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप नंबर 13 इन जनरल हम बात कर रहे हैं. तो दे हैव टेंडेंसी कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देके प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए और अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए और स्टेबल हो जाए, राइट. लेकिन एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो थेलियम है उसके केस में प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है. वो इसीलिए क्योंकि फर्स्टली उसका साइज सबसे बड़ा है, राइट. देन उसके केस में Np, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसके पास NS2 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी. और थेलियम के केस में जो ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनर्ट होते हैं, ये दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी कंपाउंड फॉर्मेशन. दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी कंपाउंड फॉर्मेशन. किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से ये इनर्ट हो जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये इनर्ट हो जाते हैं. इसी वजह से इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इनर्ट हो जाता है, उसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में, और हैंस इस केस में सिर्फ एक ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में या फिर कंपाउंड फॉर्मेशन में, तो सिर्फ प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल रहती है इन केस ऑफ थेलियम. लेकिन बाकी केसेस में बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उनके केस में प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है. उसके केस में जो S के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू टेक पार्टिसिपेट इन द कंपाउंड फॉर्मेशन और द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. नेक्स्ट यू हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज. Chemical properties, firstly we have reaction with air. Boron, pure boron is almost unreactive or very less reactive with oxygen, but an aluminium form aluminium oxide readily, aluminium oxygen के साथ बहुत जल्दी aluminium oxide फॉर्म कर लेता है. और बोरॉन जो है बहुत लेस रिएक्टिव होता है. बोरॉन भी वैसे ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं. अगर एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रेट्स फॉर्म कर लेते हैं. जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं इस ग्रुप के, बोरॉन के जो ऑक्साइड्स हैं, दिस बोरॉन ट्राईऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, एंड एल्यूमिनियम के और गैलियम के, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और गैलियम के ऑक्साइड्स जनरली एम्फोटेरिक होते हैं इन नेचर. दे आर एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक होने का मतलब वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं. दे कैन एक्ट एज बोथ. एंड इंडियम और थेलियम के केस में अगर आप इंडियम और थेलियम के ऑक्साइड्स देखें तो वो बेसिक, वो दे आर कम्प्लीटली बेसिक इन नेचर, इंडियम और थेलियम के ऑक्साइड्स. देन यू हैव रिएक्टिविटी विद वाटर. वाटर के साथ अगेन जो प्योर बोरॉन है इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव और ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव विद वाटर. एल्यूमिनियम भी नॉर्मल कंडीशन पर कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है. बट अगर एल्यूमिनियम को आप मरकरी के साथ, Hg इज योर मरकरी, इसके साथ अमलगेमेट करें
एक टर्म यूज़ होती है अमलगमेट, इसका मतलब है कि वहाँ पर मरकरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। एल्युमिनियम अमलगमेट का मतलब है कि एल्युमिनियम के साथ थोड़ा सा मरकरी मिक्स किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में अमलगमेटेड एल्युमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन देता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है इजीली। गैलियम और इंडियम अगेन ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन देते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ। हेलाइड्स के साथ ये ट्राई हेलाइड्स इन जनरल सभी एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 के ट्राई हेलाइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि आपके पास AlCl3 हो गया, BF3 हो गया। ट्राई हेलाइड्स आर द कॉमन हेलाइड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप नंबर 13. Then you have some anomalous properties of boron. बोरॉन की anomalous property के बारे में, anomalous behavior of boron में सबसे पहले we have formation of hydrides. ट्राईहाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं इन जनरल ग्रुप नंबर 13 के सभी एलिमेंट्स। तो इसमें लेकिन ये जनरल है, बोरॉन के केस में जो बोरॉन के हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं दे आर नॉट जस्ट ट्राई हाइड्राइड्स, बहुत नंबर ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है बोरॉन, जिसे कहा जाता है बोरेन्स। बोरॉन के हाइड्राइड्स को बोरेन्स कहा जाता है। बोरेन्स it can be B2H6 or B4H10 or B5H11. They have general formula of generally boranes को हम BnHn+4 या फिर BnH+6 भी कह सकते हैं, N+6। दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर बोरेन्स। बोरेन के हाइड्राइड्स को कहा जाता है, बोरॉन के हाइड्राइड्स को बोरेन्स कहा जाता है। सिर्फ ट्राईहाइड्राइड्स ही नहीं, ये और भी बहुत सारे बोरेन्स फॉर्म होते हैं। सबसे ज़्यादा जनरल आपके पास ये है B2H6 विच इज़ कॉल्ड डाइबोरेन। डाइबोरेन बहुत ही कॉमनली स्टडी किया जाने वाला बोरेन है, और इसके केस में आपके पास मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड्स होते हैं। मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड मतलब कि जो बॉन्ड है वो किसी एक एटम या एक सेंटर पर लोकेटेड नहीं होगा, वो एक से ज़्यादा सेंटर पर लोकेटेड होगा। अगर हम यही केस देखें हाइड्राइड्स का ही एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो इन जनरली ट्राईहाइड्राइड्स ही होते हैं, पर वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। पॉलीमेरिक फॉर्म का मतलब है कि एल्युमिनियम के केस में जो आपके पास एल्युमिनियम ट्राईहाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं वो एक सिर्फ एल्युमिनियम ट्राईहाइड्राइड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एल्युमिनियम ट्राईहाइड्राइड्स के कंबाइन करके पॉलीमेरिक फॉर्म में आते हैं। इस तरह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एल्युमिनियम हाइड्राइड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है लिथियम के साथ। सिर्फ एल्युमिनियम हाइड्राइड ही नहीं बल्कि जो बोरॉन हाइड्राइड है या गैलियम के हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं वो भी बहुत एक यूज़फुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। आपने कई जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर लिथियम बोरॉन हाइड्राइड भी कह सकते हैं, या लिथियम गैलियम हाइड्राइड भी होता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कॉम्प्लेक्स जो है एल्युमिनियम के अलावा बोरॉन और गैलियम भी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ योर फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स। हेलाइड्स, अब ये था हाइड्राइड्स फॉर्मेशन, सेकेंड इज़ योर फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स। जो ग्रुप नंबर 13 है उनके हेलाइड्स ट्राईहेलाइड्स के तौर पर फॉर्म होते हैं इन जनरल, और बोरॉन के भी हाइड्राइड्स, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड्स हेलाइड्स फॉर्म करता है, लेकिन उसके जो बोरॉन के ट्राईहेलाइड्स होते हैं दे आर मोनोमर्स, volatile as well as
कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्मेशन होती है उनकी। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मोनोमर। मोनोमर का मतलब है ये एक यूनिट के तौर पे, सपोज यू हैव BCl3 या फिर BF3, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे। इसके केस में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स होते हैं, बोरॉन के सारे हेलाइड्स स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड्स, और ये बेस के साथ रिएक्शन देकर सॉल्ट फॉर्मेशन करा देते हैं या एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये सेम है जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था। इसकी हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर भी आप sp2 ही फाइंड आउट कर, वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम ही आएगा। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम का केस ले, एल्यूमिनियम के केस में जो आपके पास ट्राई हेलाइड्स या फॉर्म होते हैं वो डाइमेरिक फॉर्म में होते हैं। ये मोनोमर होते हैं, ये डाइमर्स होते हैं, डाइमर होते हैं। डाइमर होने का मतलब कि ये सिर्फ, अगर यू हैव एग्जांपल्स AlCl3, AlCl3 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट एज Al2Cl6, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी आपके पास एल्यूमिनियम के जो ये ट्राई हेलाइड्स फॉर्म हुआ है, ये दो यूनिट कंबाइन करके Cl एंड Cl, दिस यहाँ पर बनाती हूँ, this combine to form dimer as this. Cl, Cl, Cl and Cl. यहाँ पर जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है एल्यूमिनियम को, और यहाँ ये इसको डोनेट करता है। ये आपके पास फॉर्म हुआ है एक डाइमर। दो यूनिट्स को कंबाइन करके आपके पास डाइमर फॉर्म होते हैं। एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, इस एल्यूमिनियम एटम ने इस क्लोरीन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। सिमिलरली इस एल्यूमिनियम एटम ने क्लोरीन से अपना एक लोन पेयर एक्सेप्ट करा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसीलिए इन दोनों, अगर इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए तो ये डाइमर काफ़ी स्टेबल होता है। और ये आपके पास मोस्टली वेपर स्टेट में, जब एल्यूमिनियम क्लोराइड वेपर स्टेट में होता है या फिर किसी इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो, जैसे बेंजीन है, तो ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाउ जो ये अनोमलस बिहेवियर या एक्सेप्शन सा बिहेवियर है बोरॉन के हेलाइड्स और एल्यूमिनियम के हेलाइड्स का, कि ये मोनोमर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं और ये डाइमर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि बोरॉन atom is very small in size. Boron का size, it does not have tendency to accommodate 4 large size halides. अगर इसका डाइमर फॉर्म करें तो इसके साथ एक, जैसे आप सपोज यहाँ पर है ये एल्यूमिनियम, ये एक एल्यूमिनियम 4 हेलाइड्स के साथ कंबाइन है। अगर बोरॉन डाइमर फॉर्म करता तो उसको बॉन्ड फॉर्मेशन करनी पड़ती 4 हेलोजन एटम के साथ, एंड इट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इट डज नॉट हैव टेंडेंसी टू अकोमोडेट 4 लार्ज साइज्ड हेलाइड आयन अराउंड इट। क्योंकि हेलोजन का साइज काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू बोरॉन, तो ये उसको नहीं अकोमोडेट कर सकता। इस वजह से बोरॉन के डाइमर्स फॉर्म नहीं होते। नेक्स्ट आपके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं इनके। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो बोरॉन के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम के एम्फोटेरिक होते हैं, और इंडियम और थेलियम के एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट यू हैव यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, यू कैन स्टडी देम योरसेल्फ. The next topic is some important compounds of boron which is deducted from your syllabus for the timing, and with this your group number 13 is complete. जितना भी आपके सिलेबस में फ़िलहाल है उतना इस अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरीज इन दिस टॉपिक और इन दिस लेक्चर यू कैन आस्क, बट आपका ग्रुप नंबर 13 कंप्लीट हो गया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट ग्रुप नंबर 14, और अब इस चैप्टर में आपके पास 2 ही ग्रुप है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14. तो बहुत जल्दी आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. बट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं.